Good morning, dear student. Today we start here. This is the second video of 9th B exercise of class 6 maths. And in the last video, I told you question number 1 to 5. And today I will tell you here question number 6. Okay, let's start here. In the question number 6, which ratio is greater? So, dear children, here we find the which ratio is greater. Today I know here how we find which ratio is greater or which ratio is smaller. So this is a very simple question, and 3 questions are given here. So I will tell you here only question 1 and question first and third. Okay. Now the first question is 7:8 or 2:3. So dear children, here which ratio is greater? So 7:8 and 2:3 equal. 7:8 equals 7 upon 8 and 2:3 equal 2 upon 3. Then we will do here by the cross multiply. So 7 multiply by 3 and 8 multiply by 2. So 3 multiply by 7 that is equal 21. 2 multiplied by 8 equal 16. Now tell me here which number is greater, 16 or 21? So 21 is greater and 16 is smaller. But in this question is asking which ratio is greater. Which ratio is greater? So dear children, 7 upon 8 means here 21 is greater, and in the 21 comes from 3 multiplied by 7. 21 comes from 3 multiplied by 7, and 3 and the product of 3 and 7 equal 21. Now tell me which number is numerator in these two numbers, 3 or 7. Look at here, 3 is here denominator and 7 is here numerator. So this fraction is greater, and 7 upon 8 comes from 7:8. So 7:8 or 7:8 or 7 upon 8 is greater. Okay, means here we choose here numerator. Which is numerator? 7. First we choose here the greater number, then we choose the numerator. Okay. Now the third question, 7:16 or 13:24. So which ratio is greater? So first here we change into the fraction. So 7:16 equals 7 upon 16, 13:24 equals 13 upon 24. Okay. Now we do here the cross multiply. 7 multiplied 24 equal 168. And 16 multiplied by 24 equal 16 multiplied by 13 equal 208. Now compare these two numbers. 168, 208 means 208 is greater, and 208 is greater means that means the product of 16 and 13 equal 208. So 16 and 13, which number is numerator? Look at here, 13 is a numerator. Okay, here 16 is a denominator, 13 is a numerator. Means this fraction is greater, and this fraction is comes from 13:24. Okay, so 13, this fraction is greater means 13 upon 24 or 13:24 is ग्रेटर. ओके, आप दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट इन द क्वेश्चन में ये बोला है व्हिच रेशियो इज ग्रेटर, इसलिए आप ये रेशियो लिखिए. हमने इसीलिए दोनों लिखे हैं क्योंकि ये कहां से आया है, यहां से आया है. ओके, सो 13:24 इज ग्रेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In Mary's English class, the ratio of number of students receiving A grade to the total number of students is ratio 6. To the total number of students is 6:25,
and Johan's English class, the above ratio is 5:20. Which class has a better record of grade of A grade? So dear children, this is the statement. So better class, very simple. Which ratio is greater means जो रेशियो आपका ग्रेटर होगा वो बेटर क्लास होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर में आप देखिए, किसी ने इंग्लिश में 24 पाया, किसी ने इंग्लिश में आउट ऑफ 30, ओके, आउट ऑफ 30, और किसी ने 29 पाया. तो कैन यू टेल मी व्हिच क्लास इज बेटर? मींस दिस क्लास इज बेटर बिकॉज इनका जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है. ये ज्यादा 29 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, मींस ज्यादा नंबर वाले, ज्यादा मार्क्स वाले, इसलिए ये बेटर क्लास होगी. ओके, नाउ सो बेटर क्लास हियर 6:25 and 5:20 equal. Better class equal 6/25 or 5:20. So 6/25, 5/20 will be the cross multiply. Now 6 multiplied by 20 equal 120, and 25 multiplied by 5 equal 125. Then the children here 125 is greater and 120 is smaller. So which class is better? 125 plus. So and 125 is comes from 5 multiplied by 25, and 5 multiplied by 25 in these two numbers, which number is numerator? So 25 is denominator and 5 is numerator. So 5/20, and 5/20 is this number, and 5/20 is 5:20, and 5:20 is a Johann class. Okay, so Johann class has better record of grade A. Okay, that's all. Now question number 8. Dear children, in the question number 8, divide ₹84 in the ratio of 5:7. So dear children, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बहुत ही ध्यान देना है. कई रेशियो को हम ऐसे प्रोपोर्शन में ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ रेशियो को हम ऐसे सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि इसमें तो हमने रेशियो को यहाँ आपने बताया सर कि आप बोलेंगे बताया है आपने कि वो अपॉन में फ्रैक्शन में करते हैं, बट यहाँ पे तो हमने रेशियो को हमने क्या किया है, दोनों टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म, हमने बोथ टर्म को यहाँ ऐड किया है. तो हम ऐड कब करेंगे, तब फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो इसको आप ध्यान रखने के लिए जब किसी भी दोनों रेशियो का टोटल नंबर बताए, जैसे यहाँ पे कि 84 किसका रेशियो है, 5 और 7, दोनों 5:7, इन दोनों का नंबर है ये 84, तब हम वहां पे प्लस करके करेंगे. मींस कि जैसे एक क्लास में, सपोज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 40 स्टूडेंट. सपोज 40 स्टूडेंट. अब 40 स्टूडेंट में कौन कौन आते हैं? बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं, बोथ दोनों आते हैं. तो हमने यहाँ पे जो 40 बताया है वो टोटल स्टूडेंट बताया है. हमने ना तो ये बोला कि बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स है, हमने दोनों में से कोई नहीं बताया. हमने टोटल स्टूडेंट बताया कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 or 8 or 9 10 equal 40. So how the ratio of, suppose the ratio of 5:8, the ratio of 6:4, तो आपको इनका रेशियो जो है 6:4 है. तो आपको ये बताना है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं. यदि ये बॉयज हो गए, सपोज 6:7 मींस बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है, तो हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर हियर. सो तो यहां पे हमने क्या बताया, टोटल बताया है. क्या बताया है?
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन क्लास। सो हम इनको प्लस करके, तब हम ऐसी जगह में प्लस करके करेंगे। या कई इतने चॉकलेट हो, इनको इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी हम प्लस करेंगे। मींस कहने का कि जब कहीं पे भी रेशियो का वो जो टोटल नंबर का सम बताए, यानी टोटल बताए और आपको दोनों का नंबर निकालना हो, तो वहां पे हम प्लस करके करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ₹84 is the ratio of 5:7. So sum of the term of ratio, this is the first term and this is the second term. So the sum of the term of ratio, so 5:7 equals 5 plus 7 equal 12. 7 plus 5 equal 12. Means the sum of the term of ratio equal is 12. So now first we find the one amount, then we find the second amount. Okay, because here only two numbers are here, इसलिए two numbers हैं, first term and second term. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ दो अमाउंट निकालेंगे। यदि इसी में 5:7:3 होता तो हम फिर 3 टर्म का रेशियो निकालते, 3 टर्म का अमाउंट निकालते, यानी 3 अमाउंट निकालते। ओके, नाउ so 5 up plus 7 equal 12, then one amount is 5:7 is, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 84 को, फिर इसको इसके साथ इससे डिवाइड करेंगे, मींस 5/12, so 5/12, this 5 and this 12, 5/12 multiplied by 84, so 12 1 12, 12 7 84, and now number is only 7 and 5, 7 multiplied by 5 equals 35, means first amount is ₹35. now the second amount हमने यहाँ 5 के साथ डिवाइड कर लिया, अब 7 के साथ डिवाइड करना है, तो so 7/12, if first time 5/12, then second time 7/12. okay, clear, समझ में आया? 5/12 and then 7/12, so here we write it 7/12. 12 1 is 12 and 12 7 is 84. Now number is 7 multiplied by 7 equal 49. So first amount is 35 and second amount is 49. Means ये जो 84 है, इस रेशियो में यदि हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक फर्स्ट को हम 35 रुपीस देंगे इस वाले को, और 49 वाले को, 7 वाले को 49 रुपीस देंगे। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को यदि ऐड करें तो आपका 84 आना चाहिए, तो 9 5 14 4 कैरी 1 4 3 7 1 कैरी 8, यानी 84 आ रहा है। मींस ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है ये राइट है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now dear children, question number 8 का fourth, question number second and third question I leave here, मैं यहाँ पे लिख छोड़ दिया हूँ, आप इसको you can do yourself, very easy, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो फोर्थ है, इसमें 3 करते हैं, इसलिए हमने इसको बताया। ओके, 3 लीटर इन द रेशियो मींस क्वेश्चन नंबर 8 का ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है मींस डिवाइड, यानी हमको 3 लीटर को इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। सो तो 1 to 3 रेशियो में दिया है 1:3, सो तो किसी को 1 लीटर तो आएगा नहीं, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 2 3 नंबर है। सो इसलिए फर्स्ट वी चेंज हियर 1 लीटर इक्वल 3000 मिलीलीटर, मींस हियर वी कन्वर्ट हियर 3 लीटर इनटू मिलीलीटर, सो 3000 मिलीलीटर। सो नाउ द सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, this ratio equal first 2 3, 1 plus 2 plus 3 equal 6. Now one amount, second amount and third amount. So first here 1/6, second 2/6 and third 3/6। पहले हम इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 1/6 2/6 and 3/6 multiply by 3000, 6 1 6 6 530 equal 500, this is milliliter, so we write the milliliter,
मींस फर्स्ट जो 1 रेज टू लीटर है उसको हम 500 मिलीलीटर लेंगे, और सेकंड अमाउंट जो है 2/6 6 30 is 500, 5 2 जा 10 1000 मिलीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर, हम दोनों लिख सकते हैं। सो सेकंड अमाउंट जो होगा वो इस वाले को 1 लीटर देंगे। सपोज ये मिल्क है तो हमारे पास यदि 3 लीटर मिल्क है और हमें 3 लोगों को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो फर्स्ट वाले को हम 500 मिलीलीटर देंगे, सेकंड वाले को हम 1 लीटर मिल्क देंगे एंड थर्ड वाले को 3/6 मींस 3/6 पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ डिवाइड करें। So 6 1 is 6, 6 5 is 30 and 2 0 and 5 3 is 15, 2 0 is 1500. So 1500 equal 1.5 लीटर, यानी थर्ड अमाउंट जो होगा 1.5 लीटर होगा। Okay dear children, now the question number 9 just like the question number this question, इसमें भी 117 को 2:4:7 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने अमाउंट को? 117 को। सेम मेथड बिल्कुल आपको इसी तरह यही स्टेटमेंट लिखना है, इसी तरह प्लस करना है और एक बार इनका जो सम आएगा एक बार इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ आपको इसी तरह आपको प्लस करना है। डिनोमिनेटर में आपका यही नंबर ये नंबर है कि इनका सम आएगा, यानी 13 अपॉन एक बार 2/13 होगा, सेकंड टाइम 4/13 एंड 7/13 मींस 13 जो होगा वो डिनोमिनेटर में हर जगह होगा और फर्स्ट टाइम ये 2 के साथ फिर 4 के साथ फिर 7 के साथ आपको डिवाइड करना है। ओके, और मल्टीप्लाई 170 सेम बिल्कुल दिस मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 इज आल्सो 1 आवर इन द रेशियो ऑफ 2:3 आपको डिवाइड करना है। 1 आवर इक्वल 60 मिनट, देन 2 प्लस 3 इक्वल 5, बस हो गया 2/5 3/5। ओके, सो डियर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 9 10 11 पर you can do yourself and this exercise is also completed. Now thank you, have a nice day.